Good morning, students. Last time we had covered up to sum number 2, and now we have to do from sum number 3, and our exercise is 4.2. Sum number 3 is check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not. आपको ये बताना है, इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, कुछ पार्ट्स हम करके देखेंगे अभी, और जो बचे हुए 1-2 पार्ट्स हैं वो आप अपने आप करके देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 2 0, ये x की वैल्यू है, ये 2 बाद में है वो y की वैल्यू है। पहले वाली x की वैल्यू पुट करनी है आपको, और जो बाद वाली है वो आपने y की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, y की वैल्यू पुट करेंगे 2। ये पहले वाली वैल्यू x की पुट होएगी, जो सेकंड वाली है वो y की वैल्यू पुट होएगी। तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 माइनस 2 इंटू 2, 0 को हम 0 ही समझेंगे, ये हो गया -4। राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड वाज 4। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0 2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये पॉइंट है इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4. So this was part number 1. Let's do second part. सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इट इज x minus 2y, and this time x is 2, y is 0. तो put x equals to 2, y equals to 0. तो ये x तो हमारा बन गया 2 minus 2 into 0. 2 minus 0 that is 2. And our right hand side is 4. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। Therefore, left hand side is not equal to right hand side. Therefore, 2 0 is not a solution of the equation x minus 2y is equal to 4. तो इसका मतलब 2 0 is not a solution. Let's do the fourth part. The same process. First of all, left hand side, and our left hand side is x minus 2y. जो पहली वैल्यू है वो x की है, जो बाद वाली वैल्यू है वो y की पुट करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4√2। तो x की जगह हम पुट करेंगे √2, 2y मीन्स 2 इंटू 4√2, ये 2 है, और y की वैल्यू हमने पुट करी है 4√2। √2 माइनस 8√2, प्लस के पास 1√2 है, माइनस के पास 8√2 है। तो प्लस के पास थोड़े हैं, माइनस के पास ज्यादा है, तो ये आ जाएगा माइनस 8√2 में से 1√2 चला गया 7√2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 4। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी -7√2, राइट हैंड साइड की वैल्यू 4। तो दोनों इक्वल नहीं है, सो वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, √2, 4√2, these are the coordinates, and this point is not a solution of the equation x minus 2y equals to 4. So this is the way you will do part number 4.
Let's do part number 5. This time x is 1, y coordinate is also 1. So first of all, put the value of these coordinates into left hand side. Our left hand side is x minus 2y. So first of all, we will write left hand side, and left hand side is x minus 2y. Now put x equals to 1 and y equals to 1. Both are 1. X coordinate is 1, y coordinate is 1. तो इस x की जगह हम लिखेंगे 1, -2, और इस y की जगह आ जाएगा 1, तो 2 into 1. It is 1 minus 2, that is -1. Our left hand side is -1. Now right hand side. Our right hand side is 4. Therefore left hand side is not equals to right hand side. Therefore coordinates 1 1 is not a solution of the equation x minus 2y equals to 4. So this is the way you will do sum number 3. Now let's do sum number 4. You will find this sum very easy. So let's read the statement. Find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x plus 3y is equal to k. x की वैल्यू हमने पुट करनी है 1, x equals to 2, x की वैल्यू हमने पुट करनी है 2 और y की वैल्यू पुट करनी है 1. तो पुट x equals to 2 and y equals to 1. तो 2 into x, तो 2x की वैल्यू है 2, तो 2 into 2 प्लस 3y, तो 3 into y की वैल्यू हमारे पास है 1 equals to k. ये हो गया 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 3 equals to k. 4 plus 3 7 equals to k. That means k is equal to 7. This is the answer. And this is the way you will do sum number 4. Let's start exercise 4.3. And sum number 1 is draw the graph of each of the following linear equation in two variables. And our first equation is x plus y equals to 4. तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे. ये हमने एक टेबल बनाया. आप ये कोशिश करें कि आप इसके अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज से बचें, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल पा रही जो एक इंटीजर हो, तो फिर आप इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हो. तो देखो, अब सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x को आप छुपा लीजिए. x की वैल्यू 0 पुट कर दी मीन्स x छिप गया. तो x 0 है तो y कितना दिख रहा है 4. तो ये हमने क्या किया, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x आपका फिनिश हो गया, तो सिर्फ y इक्वल्स टू 4 रह गया. अब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y छिप जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. जब y 0 है तो x इज 4. तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया. तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना है. टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ पेपर पे जाइए. आप ग्राफ की कॉपी पे ये सम तैयार करेंगे. यू विल ड्रा इट ऑन द ग्राफ पेपर. व्हेन x इज 0 y इज 4. x 0 है तो y 4. तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट शो करेगा x 0 y 4. फिर 4 0, जब x 4 है तो y 0, x 4 है तो y 0, इस पॉइंट को शो करेगा 4 0. देखिए इसमें x 0 है तो ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा. इसमें y 0 है तो y 0 है तो ये x एक्सिस पे आएगा. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाएंगे. स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी ड्रा हो जाएगी और इसके ऊपर लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.
ये हमने प्लॉट किया था 4 0, ये पॉइंट प्लॉट किया 0 4 और ये प्लॉट किया 4 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए पेंसिल स्केल के साथ एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन आपका x + y = 4 का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। इसमें हमारे को ग्राफ ड्रा करना है x - y = 2। तो सबसे पहले आप टेबल तैयार करेंगे। x - y = 2, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है। तो जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो 2 - 0 ये क्या हो जाएगा आपका 2। दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। 2 - 0 2। अब x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। जब हम x 4 लेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तब 2 आएगा। तो x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली, तो 4 - 2 2। तो ये हमारा तरीका हो गया टेबल बनाने का। आप और वैल्यू भी ले सकते हो। मान लें आप x को 5 लें, y को 3 लें, तब भी 2 आ जाएगा। तो x is 5, y is 3। या x को आप 10 लें, y को 8 लें, तब भी 2 आ सकता है। x is 10, y is 8, तो डिफरेंस इज 2। तो कोई भी दो नंबर ऐसे लें जिनका डिफरेंस 2 है। बड़ा नंबर आप x ले लेंगे, छोटा नंबर y ले लेंगे और उनका डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए। वो आप इस टेबल में शो कर देंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x2 y0 ये पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा x2 और y0 को। नेक्स्ट x4 है तो y2, x4 इधर और y2 इधर इसके सामने। ये पॉइंट इधर x एक्सिस के सामने 4 है, y एक्सिस के सामने 2 है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 2 को। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रा कर देंगे पेंसिल स्केल से। ये आपको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है। तो ये आप इनको ज्वाइन करते हुए, ये सीधा बनना चाहिए आपका। थोड़ा सा सीधा कम है ये, मैं इसको यहीं रोक देता हूँ फिर। तो ये बिल्कुल आपकी स्केल और पेंसिल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा होनी चाहिए। और इसका हम नाम लिखेंगे इस x - y = 2। तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट x - y = 2। पार्ट नंबर 3 का मैं आपको सिर्फ टेबल बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ आप खुद ड्रा कर लेना। y = 3x। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमारा हो गया 3 × 1 3। तो जब x 1 है तो y हो गया हमारा 3। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y हमारा हो जाएगा 6। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y हो गया 6। तो मेरे को उम्मीद है आप इसका ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रा कर पाओगे। लेट्स ट्राई द लास्ट पार्ट। इट इज 3 = 2x + y। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y = 3। अब हम इसका पहले टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। 2x + y = 3 में x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। पुट x = 0। तो इट इज 2 × 0 + y = 3। 2 × 0 is 0, तो y = 3। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास आ गया 3। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2x + y = 3। पुट x = 2 या 3 भी पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं 3 पुट कर देता हूं मैं। तो ये हो गया 2 × 3 + y = 3। तो ये हो जाएगा 6 + y = 3। तो y = 3 - 6 दैट इज -3। तो जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है। आप चाहो तो x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, जैसा आप चाहे वैसी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। x0 y3। तो ये x0 है y3, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x0 y3। जब x3 है तो y -3, ये x3 है और y -3 इसके सामने, तो ये पॉइंट हो गया x एक्सिस पे 3 के सामने, y एक्सिस पे -3 के सामने। तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 3 - 3।
अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए हैं, तो हम इनको पेंसिल स्केल के साथ ज्वाइन कर देंगे और ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो ये आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये बिल्कुल बीच में से निकलना चाहिए आपका पॉइंट ऐसे। तो ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट 2x plus y equals to 3, and this is the way you will do sum number 1. Let's do the next question. Give the equations of two lines passing through the coordinates 2, 14. How many such more lines are there and why? हमारे को दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो कोऑर्डिनेट्स 2 और 14 में से निकलती हो। तो इसका आसान सा तरीका है, देखो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई। तो x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ, y की वैल्यू 14 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 14 दैट इज 16। x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, y की वैल्यू 14। जो पहले वाली वैल्यू है वो x की होती है, दूसरे वाली y की। तो पहली इक्वेशन हमारी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी तैयार होगी। अब आप x की वैल्यू, इसको आप x प्लस वाई की जगह आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, x माइनस वाई। अगर मैं x माइनस वाई लेता हूँ तो ये बन गया 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। इसी तरह से आप और भी इक्वेशन बना सकते हो 2x प्लस 3y। तो ये हो गया 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने 14 पुट कर दी। तो 2 टू जा 4, 14 3 जा 42, इट इज 46। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। इसी तरह से आप इक्वेशन बनाते रह सकते हैं। आप यहाँ लिख दो 2x माइनस 3y, 10x प्लस 5y, तो ये वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी। तो इसका मतलब हुआ कितनी लाइंस हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। क्यों? क्योंकि दो लाइंस जहां से काटेंगी वो एक पॉइंट बनेगा, और पॉइंट से आप इनफाइनाइट मैनी लाइंस खींच सकते हो। तो ये तो हमारी दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और फिर इनफाइनाइट मैनी लाइंस। Can be drawn as from a point infinite number of lines can be drawn. क्योंकि जब दो लाइनें काटेंगी तो वो एक पॉइंट पे काटेंगी, और एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रा कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स 2, 14 को इक्वेशन बताने वाली इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस होंगी, और इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट। Let's do sum number 3, the last sum for the day. If the point coordinates 3, 4 lies on graph of the equation 3y equals to ax plus 7, then find the value of a. ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। इक्वेशन हमें दे रखी है 3y equals to ax plus 7, 3y is equal to ax plus 7, x कोऑर्डिनेट 3, तो पुट x equals to 3, y कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, तो y equals to 4, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, a इंटू x मीन्स 3 प्लस 7, 3 4 जा 12, प्लस का 7 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3a, 12 माइनस 7 दैट इज 5 इज इक्वल टू 3a, एंड a इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3। तो दिस इज द वे you will do sum number 3.